وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنیخیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ میں رکشے میں بیٹھا میرٹھ شہر کے کسی بازار میں سے گزر رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ خفیہ پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مجھ پر گھبراہٹ وغیرہ بالکل طاری نہیں تھی، لیکن میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہو چکا تھا۔ اس وقت میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے شک بلکہ بے حد یقین تھا۔ جس بازار میں میرا رکشہ جا کر رکا تھا اس کے آگے بھی ایک چوک آتا تھا۔ جیسے ہی رکشہ چوک کے قریب پہنچا، دوسری سڑک پر سے پولیس کی ایک گاڑی تیزی سے آئی۔ چوک میں آ کر گاڑی کو بریک لگی۔ اس میں سے 4-5 کانسٹیبل چھلانگے لگا کر نکلے اور انہوں نے بازار کو بلاک کر دیا۔ ایک انسپیکٹر ہاتھ میں پستول لیے بازار کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے آگے ایک گاڑی اور ایک رکشہ جا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ دے کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے رکشہ ڈرائیور سے کہا، رکشہ روکو۔ جیسے ہی رکشے کی رفتار ذرا کم ہوئی، میں نے رکشے میں سے چھلانگ لگا دی اور سامنے ایک گلی میں گھس گیا۔ خفیہ پولیس والے نے اپنی اعلیٰ کارکردگی دکھائی۔ ضرور اس نے مجھے اسٹیشن کے باہر رکشے میں سوار ہوتے دیکھ لیا تھا اور کسی طریقے سے پولیس اسٹیشن اطلاع کر دی تھی اور خود رکشہ یا کوئی اور سواری لے کر میرے تعاقب میں روانہ ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہ خطرہ تھا کہ گلی آگے سے بند نہ ہو۔ گلی بند نہیں ہوتی تھی۔ میں دوڑنے کی بجائے تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ گلی بالکل خالی تھی، دونوں جانب مکان تھے۔ گلی تھوڑی دور جا کر ایک اور بازار میں نکلتی تھی جو نسبتاً چھوٹا بازار تھا اور اس کی دکانیں بھی چھوٹی تھیں۔ یہاں بھی مکانوں کے درمیان ایک مسجد کا دروازہ دکھائی دیا۔ مسجد کا دروازہ صاف پہچانا جاتا ہے۔ میں سیدھا 2-4 سیڑھیاں چڑھ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں نے چپل اتار کر بغل میں دبائی اور مسجد کے صحن میں سے گزر کر ممبر والے چھوٹے سے ہال کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک بزرگ صورت سفید داڑھی والا بھاری بھرکم آدمی بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ پولیس نے اس سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہوگا اور تھوڑی دیر میں پولیس تلاشی لیتی اس مسجد میں بھی پہنچ جائے گی۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ پولیس کو میرے پاکستانی جاسوس یا کشمیری حریت پسند ہونے کا یقین ہو چکا تھا اور وہ ہر حالت میں مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا اپنا خیال تھا۔ پولیس کو یہ بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں مسلمان ہی ہو سکتا ہوں اور وہ مجھے تلاش کرنے مسجد میں ضرور آئیں گے، کیونکہ ایک مسلمان حریت پسند اس قسم کے حالات میں مسجد ہی میں پناہ لے سکتا ہے۔ میں نے اس بزرگ سے جو کچھ کہنا تھا وہ سوچ لیا تھا، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں خدا سے یہ دعا مانگنے لگا کہ بزرگ دعا مانگنے سے جلد فارغ ہو جائیں۔ اتنے میں اس بزرگ نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر باہر جانے لگا تو میں نے السلام علیکم کہا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور وعلیکم السلام کہہ کر مسجد کے صحن کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے آواز دے کر کہا، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ بزرگ رک گیا اور 2 قدم چل کر واپس میرے قریب آ کر بولا، کہو میاں کیا بات ہے؟ معاملہ بڑا نازک تھا۔ اصل حقیقت چھپانے سے کام نہیں بن سکتا تھا اور اصل حقیقت بیان کر دینے سے میرے لیے مزید خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ مسلمان بزرگ کسی دوسری قسم کا انڈین مسلمان بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت صرف اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کے دل میں جذبہ ایمانی کو بیدار کیا جائے۔ چنانچہ میں نے ایک ہی سانس میں کہا، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کشمیر میں اسلام کی خاطر جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا۔ پولیس میرے پیچھے لگی ہے۔ مجھے کچھ دیر کے لیے کسی جگہ چھپا دیجیے، آپ کو جنت کا ثواب ملے گا۔ اس بزرگ کے دل میں ایمان کا جذبہ پہلے ہی سے بیدار تھا۔ وہ پکا مسلمان تھا۔ اس نے دوسری بات ہی نہ کی، صرف اتنا کہا، مسجد کی چھت پر چلے جاؤ، وہاں بیٹھے رہنا، میں آ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں دیوار کے ساتھ والی سیڑھیاں چڑھ کر مسجد کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ میری دونوں جانب مکانوں کی دیواریں اوپر تک چلی گئی تھیں۔ عقب میں کوئی مکان نہیں تھا۔ وہاں بھی ایک سیڑھی نیچے شاید کسی گلی میں جاتی تھی، مگر میں بزرگ کی ہدایت کے مطابق مسجد کی چھت پر ہی بیٹھا رہا۔ دوسرے بازار کی طرف سے پولیس کی سیٹیوں کی مخصوص آوازیں 2-3 بار سنائی دیں۔ پولیس موجود تھی اور میری تلاش شروع ہو گئی تھی۔ جس رکشے میں میں سفر کر رہا تھا اس کے ڈرائیور نے ضرور پولیس کو بتا دیا ہوگا کہ میں فلاں گلی میں گھسا تھا۔ پولیس اس گلی میں پہنچنے ہی والی ہوگی یا ہو سکتا ہے پہنچ گئی ہو اور اس مسجد کی طرف آ رہی ہو جس کی چھت پر میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ بزرگ کو حالات کی سنگینی کا کہاں احساس ہوگا، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں دوسری طرف والی سیڑھیاں اترنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ وہی بزرگ ان سیڑھیوں میں نمودار ہوا اور اشارے سے مجھے بلا کر کہا، جلدی سے میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ مسجد کی عقبی سیڑھیاں ایک تنگ گلی میں اترتی تھی۔ گلی خالی تھی۔ وہ بزرگ میرے آگے آگے چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔
वो कोई बात नहीं कर रहे थे, मैं भी खामोश था। आगे जाकर ये तंग सी गली एक बाजार में निकल आई। यहाँ एक दुकान के बाहर एक पुराना सा वेस्पा स्कूटर खड़ा था। बुजुर्ग ने मुझे स्कूटर पर पीछे बैठने को कहा। स्कूटर स्टार्ट किया और मुझे लेकर बाजार में उस समत की तरफ मुड़ गए जो पुलिस वाले बाजार से मुखालिफ समत था। मैं समझ गया कि वो मुझे खतरे के इलाके से दूर ले जाना चाहते हैं। बुजुर्ग बड़ी महारत और तेज रफ्तारी के साथ स्कूटर चला रहे थे। 3 चौराहे उबूर करने के बाद उन्होंने एक जगह से रेलवे का पुल पार किया। दूसरी जानिब घास मंडी थी। स्कूटर वहां से भी आगे निकल गया। घास मंडी के आगे शहर की पुरानी और गुंजान आबाद वाला इलाका शुरू हो गया था। 2-3 तंग से बाजारों में से गुजरने के बाद हमारा स्कूटर एक गली में दाखिल होने के बाद एक मकान की ड्योढ़ी में आकर रुक गया। बुजुर्ग ने स्कूटर से उतरकर बैठक का दरवाजा खोला और मुझसे कहा, अंदर आ जाओ मियाँ। ये छोटी सी बैठक थी जिसकी फजा में घुटन और ठंडक सी थी। अंधेरा भी था। बुजुर्ग ने बत्ती जला दी। बैठक का फर्श नंगा था। 2-3 आराम कुर्सियां और एक छोटी सी मेज इन कुर्सियों के दरमियान पड़ी थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। बुजुर्ग ने दरवाजा बंद करके चटखनी चढ़ा दी और मेरे सामने कुर्सी पर बैठने को कहा और बोले, अब बताओ मियाँ, असल बात क्या है और तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिद समझकर तुम्हें बचा कर यहाँ ले आया हूँ, मगर तुम मुझे अपनी बातों से कश्मीरी नहीं लगते। असल हकीकत मैंने उस बुजुर्ग को भी ना बताई। मैंने कहा, मैं मालीर कोटले का रहने वाला पंजाबी हूँ। शौक़ शहादत में सरशार होकर कश्मीर के महाज पर हुर्रियत पसंद मुजाहिदों में शामिल हुआ हूँ। आपने ठीक फरमाया, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। वो बुजुर्ग कहने लगे, तुम ऐन वक्त पर मेरे पास आ गए थे। अगर जरा देर करते तो पुलिस ने तुम्हें पकड़ लेना था। पुलिस मस्जिद वाली गली में तुम्हारी तलाश में पहुंच गई थी। अब बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने अपनी जेब से जालिंधर का रेलवे टिकट निकाल कर दिखाया और कहा, मैं जालिंधर पहुंचना चाहता हूं। वहां से किसी न किसी तरह जम्मू कश्मीर की तरफ चला जाऊंगा। बुजुर्ग कहने लगे, इसके लिए हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर तुम्हारी निगरानी कर रही होगी। खुफिया एजेंसी के जिस आदमी ने तुम्हें देखा हुआ है, उसने तुम्हारा हुलिया पुलिस को बता दिया होगा। वो बुजुर्ग ठीक कह रहे थे, मगर मेरा इस शहर में ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं था। इस दौरान पुलिस शहर की पूरी नाकाबंदी कर सकती थी और फिर मेरे लिए मीरठ शहर से निकलना मजीद मुश्किल हो जाता। मैंने कहा, मोहतरम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे किसी तरह शहर से बाहर निकाल दें? वो कहने लगे, निकालने को तो मैं अभी तुम्हें अपने स्कूटर पर बिठाकर शहर से बाहर पहुंचा सकता हूं, लेकिन भारतीय पुलिस कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो जगह जगह और ख़ास तौर पर शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर लोगों को रोक कर पूछगिछ कर रही होगी। चोर, कातिल और डाकुओं के लिए पुलिस इतना तरद्दुद नहीं करती। क्या दूसरे मुल्क के जासूस और कश्मीरी मुजाहिदों को पकड़ने के लिए तो वो जान की बाजी भी लगा देती हैं। खुदा न करे अगर हम पकड़ लिए गए तो तुम्हारे साथ मैं भी पकड़ा जाऊंगा। तुम तो पुलिस की हिरासत से निकलकर फरार हो सकते हो, मगर मेरी तो सारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। मैं खामोश रहा। बुजुर्ग ठीक कह रहे थे। उन्होंने ऐन मौके पर मेरी मदद की। मैं उनकी इंसानी और इस्लामी हमदर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगे, तुम ऐसा करो कि किसी न किसी तरह रात हो लेने दो। इतनी देर यहाँ छुपे रहो, यहाँ कोई तुम्हें पकड़ने नहीं आएगा। जैसे ही रात जरा गहरी होगी, मैं तुम्हें स्कूटर पर बिठाकर शहर से बाहर छोड़ाऊंगा। जीटी रोड पर पहुंचकर तुम किसी चलती बस, लारी या ट्रक में सवार हो जाना। मीरठ शहर के किसी बस अड्डे या स्टेशन से तुम्हारा गाड़ी पकड़ना किसी तरह भी ठीक नहीं है। उन्होंने बड़ी अच्छी स्कीम बताई थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहाँ रात होने का इंतजार करूंगा। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस पर वो बुजुर्ग बोले, मियाँ, शुक्रिया की जरूरत नहीं। मैं भी मुसलमान हूँ और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी का परिस्तार हूँ। हमारी इंडियन हुकूमत ने कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सिर्फ नाजायज कब्जा ही नहीं कर रखा, बल्कि उसकी फौज वहाँ मुसलमानों पर बेपनाह मजालिम तोड़ रही है। अब मेरी जवानी की उम्र नहीं रही, वरना मैं खुद जहाद कश्मीर में शामिल होकर काफिर हिंदुओं के खिलाफ जंग करता। मैं मीरठ शहर के उस भारतीय मुसलमान बुजुर्ग के इस जज्बे से बड़ा मुतासिर हुआ। दोपहर का खाना मैंने वहीं बैठकर खाया। ऊपर उस बुजुर्ग की मौम्मर वालिदा एक मुलाजिमा के साथ रिहाइश पजीर थी। उसके बड़े लड़के ने शादी के बाद शहर में अलग मकान लिया हुआ था। 2 लड़कियों की वो शादी कर चुके थे, जिनमें से एक सहारनपुर में और दूसरी इलाहाबाद में रहती थी। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं बैठक में ही सो गया। बुजुर्ग बैठक को बाहर से ताला लगा गए थे। मैं काफी हद तक बेफिक्र हो गया था। चुनाचे शाम तक मैं वहीं रहा।
शाम को आंख खुली तो वो बुजुर्ग भी आ गए। वो एक ट्रे में चाय की चैनक और 2 प्यालियां रख कर लाए थे। हमने बैठक में ही चाय पी। वो जिहाद कश्मीर के बारे में भी बातें करते रहे। बुजुर्ग ने अपने लिए चाय की तीसरी प्याली बनाते हुए मुझसे पूछा, तुम और चाय पियोगे? मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया। वो अपनी प्याली में चाय उंडेलते हुए बोले, भाई मुझे सर दर्द की बड़ी पुरानी शिकायत है। शाम को ये दर्द तेज हो जाती है। चाय के साथ स्प्रो की 2-1 गोलियां खा लूं तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूं। जल्दी में दुकान से उठकर आ गया हूं। स्प्रो की टिक्कियां लानी याद नहीं रही। मैंने जेब से सिगरेट की डिब्बियां निकाली थी। फिर माचिस निकालने लगा तो टैबलेट बम की 2 टिक्कियां बाहर निकल आईं। वो बुजुर्ग बोले, मियाँ ये तो स्प्रो की टिक्कियां हैं, लाओ 2 गोलियां मुझे दे दो। उन्होंने मेरी झोली में पड़ी टैबलेट टाइम बम की टिक्कियां उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने जल्दी से टिक्कियां उठाकर जेब में डाल ली और कहा, माफ कीजिएगा, ये स्प्रो की गोलियां नहीं है, ये तो जोड़ों के दर्द की दवा है। मैं तो इस ख्याल से लरस गया कि अगर फर्ज कर लिया वो बुजुर्ग जल्दी से एक गोली उठाकर मुंह में डालकर निगल जाते तो क्या होता। जब वो बुजुर्ग चाय के खाली बर्तन लेकर चले गए तो मैंने कुर्ते की चोर जेब में से, यानी उस जेब में से जो कुर्ते के पहलू में खुफिया तौर पर बना दी जाती है और जिसे चोर खीसा कहते हैं, मैंने उसमें से स्प्रो टैबलेट बम की टिक्कियां बाहर निकाल ली। बाकी 13 गोलियां प्लास्टिक के फीते में ही बंद थीं। ये 2 गोलियां शायद भाग दौड़ और रिक्शे से छलांग लगाने की वजह से फीते से बाहर निकल आई थीं। मैंने उन दोनों स्प्रो बम की गोलियों को भी फीते में डालकर प्लास्टिक का फीता अच्छी तरह से बंद करके जेब में रख लिया। ये बड़ा पक्का मुसलमान और सच्चा मोमिन था। अगर उस वक्त वो मेरी मदद न करता तो मेरा पुलिस के हाथों पकड़ा जाना यकीनी था। उसने मुझे बताया कि तहरीक पाकिस्तान में मीरठ के मुसलमानों ने बड़ा भरपूर हिस्सा लिया था। वो कहने लगा, मीरठ के मुसलमान बड़े दलेर मुसलमान हैं, हिंदू तो अब भी हमसे दबकर रहता है। ठीक है, हुकूमत जरूर हिंदू की है, मगर हम भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। उस बुजुर्ग ने मेरी बड़ी खिदमत की। उसका मुझे अपने घर में छुपा लेना बहुत बेडरी और दलेरी की बात थी। उस बुजुर्ग ने अपने सारे खानदान का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया था। आज भी वो बुजुर्ग मुझे याद आता है तो मैं उसकी बहादुरी और इखलाकी जुर्रत पर वाह वाह करता हूँ। शाम को वो आए तो बोले, मियाँ मैंने गुस्ल खाने में पानी रखवा दिया है, जाकर नहा लो। इस मौसम में शाम को खुनकी हो जाती थी। मैंने गुस्ल किया, रात हो गई। वो खाना ले आए, हमने साथ बैठकर खाना खाया। कहने लगे, मैं लारी अड्डे और रेलवे स्टेशन का एक चक्कर लगाकर आता हूँ, वहाँ मुझे पुलिस मामूल से ज़्यादा नजर आई है। तुम्हारा उस तरफ जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं तुम्हें स्कूटर पर बिठाकर शहर से बाहर जालिंदर जाने वाली सड़क पर छोड़ाऊंगा। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ और इन इलाकों से वाकिफ नहीं हूँ तो वो कहने लगे, देखो मियाँ, जालिंदर शहर यहाँ से काफ़ी दूर है। वो मशरकी पंजाब में है और तुम अभी उत्तर प्रदेश में हो। यहाँ से निकलोगे तो आगे बड़ा शहर मुजफ्फरनगर आएगा, उसके बाद तुम सहारनपुर पहुँचोगे। सहारन के बाद अम्बाला आ जाएगा। अम्बाले के आगे भारतीय पंजाब शुरू होता है। अम्बाले के बाद लुधियाना और फिर जालिंदर आएगा। सफ़र वाकई लंबा था, इन मानों में कि पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। जीटी रोड पर भी सफ़र करना खतरे से खाली नहीं था, मगर मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं जीटी रोड से हटकर खेतों में पैदल सफ़र करूं, जो मुमकिन नहीं था। मैंने दिल में यही तय कर लिया था कि अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ता हूं, आगे जो होगा देखा जाएगा। रात के 11 साढ़े 11 के टाइम होगा जब वो बुजुर्ग मुझे अपने स्कूटर के पीछे बिठाकर गली में से निकले। बाजारों में काफ़ी खामोशी थी, ट्रैफिक भी न होने के बराबर थी। सड़क के किनारे बत्तियां रोशन थीं। वो मुझे ऐसे रास्तों से लेकर गए जहां रोशनियां ज़्यादा नहीं थीं और पुलिस का चेकिंग का खतरा नहीं था। हम खेतों से भी गुजरे, फिर जीटी रोड आ गई, जिस पर थोड़े थोड़े फासले पर लगे खंभों पर बल्ब रोशन थे। उसने मुझे 2 खंभों के दरमियान जहां जरा अंधेरा था उतार दिया और कहा, लो भाई, अब तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया। यहाँ जो लारी जालिंदर की तरफ जाने वाली आएगी उसकी पहले चेकिंग हो चुकी होगी, फिर भी जरा होशियार होकर बैठना। खुदा हाफिज। मैंने उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया तो वो हाथ हिलाकर स्कूटर स्टार्ट करके अंधेरे में गुम हो गए। मैं जीटी रोड पर अकेला खड़ा था। सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी, दोनों तरफ दरख्त थे जिनमें अंधेरा था। पीछे मीरठ शहर की जानिब से शहर की थोड़ी थोड़ी रोशनियां झिलमिलाती नजर आ रही थी। मैं सड़क से उतरकर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। उस बुजुर्ग ने मुझे खास तौर पर हिदायत की थी कि किसी ट्रक वगैरह को हाथ देने की कोशिश न करना, हो सकता है वो पुलिस वालों की गाड़ी हो। लारी की निशानी उन्होंने ये बताई कि सवारियों वाली लारी की पेशानी पर भी एक बत्ती जल रही होती है। थोड़ी देर बाद मीरठ की तरफ से एक ऐसी ही लारी आती नजर आई।
मैंने आगे होकर उसे हाथ दिया मगर लारी न रुकी। शायद रात के वक्त ड्राइवर रुकना नहीं चाहता था या शायद लारी सवारियों से पहले ही भरी हुई थी। एक ट्रक आकर गुजर गया। थोड़ी देर के बाद दूसरी लारी आई। मैंने उसे हाथ दिया, वो भी न रुकी। ये लारी भी सवारियों वाली लारी थी। उसके बाद आधा घंटा मैं सड़क के किनारे दरख्त के नीचे बैठा सिगरेट फूंकता रहा मगर सवारियों वाली लारी ना आई। शायद रात 12 बजे के बाद मीरठ से सवारियों वाली लारी नहीं चलती थी। जब ये ख्याल जहन में पैदा हो गया तो मैंने सोचा कि मैं सारी रात तो यहाँ नहीं बैठ सकता। बेहतर है कि कोई ट्रक वगैरह आए तो उसे हाथ देकर रोकने की कोशिश करूं। जो होगा देखा जाएगा। इस शहर से फिलहाल निकलना बेहद जरूरी था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।